Hello students, welcome to another class of StudyGest, the world of educational solutions. आज हम लोग बात करेंगे about the current affairs that took place on 9th of July 2020. लेकिन आगे बढ़ने से पहले I would like to remind you of the social media platforms through which you can connect with us and get more study materials from us. Subscribe to our YouTube channel and press that bell button so that you get notified every time we upload a new video. Like us on Facebook for daily updated materials, especially on current affairs. Join our Telegram channel, follow us on Instagram, join our WhatsApp community using the number given here. For more information, you can log in to this website www.studygest.in. As you can see here, हमारा जो YouTube channel है वो ऐसे दिखता है. Do subscribe to the channel and like, share and subscribe our videos so that we can make more videos on the current affairs and any such materials related to competitive exams. And like us on Facebook in order to gain more study related materials. Now moving on with today's class, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या हुआ था particularly on 9th of July. देखिए अब बहुत कुछ होता है एक दिन में वैसे ग्लोबली बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो particularly मायने रख रहा है certain things जो मैंने अभी इसको combine किया है, there are like 18 to 20 points from current affairs one-liners जो Facebook में हमारे already share किए गए थे, वो ही मैं आज थोड़ा elaborately डिस्कस करूंगी. एंड देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है. Which bank launches भविष्य सेविंग्स अकाउंट फॉर माइनर्स aged between 10 to 18 years? The answer is Fino Payments Bank. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये भविष्य सेविंग्स अकाउंट एक्चुअली क्या करता है. तो the scheme that it promises is that it can only be opened through the electronic know your customer mode. That means ये जो है सुविधा आपको मिलेगी ये eKYC के थ्रू से ही आपको मिल सकता है. तो आप अगर फिनो बैंक के कस्टमर हैं या फिर कोई एक इंसान जो फिनो बैंक के कस्टमर है तो वो वहां पे ये सुविधा लाभ कर सकते हैं यूजिंग द eKYC मोड पर्टिकुलरली. ये आपको याद रखना पड़ेगा. KYC दैट मीन्स KYC a very important banking term that means know your customer. Okay, I hope most of you know this by now. ये हम सभी को करना पड़ता भी है. So this is a very common term yet very important. Next point is the bank will initially introduce it in only Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh and then it will gradually spread depending on its success rate. Okay. Now अब जान लेते हैं ये फिनो पेमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है एंड इसका MD and CEO कौन है. राइट, तो फिनो पेमेंट्स बैंक का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन महाराष्ट्र एंड इसका CEO एंड MD जो है हिज नेम इज ऋषि गुप्ता. CEO एंड MD जो है किसी भी बैंक जो अभी भी न्यूज पे आया है उस सभी का आप एक सोच समझ सकते हैं कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है एंड उनके स्लोगन्स क्या हैं एंड उनके जो MD कौन है, CEO कौन है या फिर चेयरपर्सन कौन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का जो न्यूज में आया है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स से. नेक्स्ट देखते हैं गूगल क्लाउड टू एंटर इनटू अ मल्टी-ईयर स्ट्रेटेजिक partner Google Cloud to enter for multiple year strategic partnership with which bank? The bank is Deutsche Bank. Now इससे जुड़े हुए जो important question आ सकते हैं वो ये है कि कौन सा कंपनी है जिसके कौन सा कंपनी है जो एक साथ में मिलके ये कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि ये जो पार्टनरशिप हो रहा है या फिर ये जो कैंपेन होने वाला है इसका एम क्या है एंड इसमें कौन कौन कंपनीज इन्वॉल्व है.
The partnership enables co-innovation between the two companies to produce next generation technology based financial products for customers and clients, and will provide the Deutsche Bank accessing right to cloud services. Cloud services क्या होता है? Cloud services is a memory, is a technological it is like a memory basically जो आपका सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है. It is not any hard drive or anything. It is like the Google Drive that you use. It is also a cloud मेमोरी सिस्टम. तो इसमें क्या होता है कि आप जितना चाहे अनलिमिटेड, यू कैन स्टोर अनलिमिटेड डेटा इन इट. तो यहाँ पे जो हो रहा है कि गूगल क्लाउड के साथ ये ड्यूश बैंक का जो है पार्टनरशिप हो रहा है ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्लाउड सर्विस से फायदा उठा सके. तो ये जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज अ जर्मनी बेस्ड बैंक. इसका हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट में एंड इसका सीईओ है क्रिश्चियन स्यूइंग, ठीक है. एंड प्रेसिडेंट है कार्ल वॉन रोर. यहाँ पे ये जो बैंक है ड्यूश बैंक, इसका हेडक्वार्टर, इसका सीईओ एंड प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे सिर्फ सीईओ ही नहीं है, प्रेसिडेंट का नाम भी है, दैट इज कार्ल वॉन रोवर. एंड ये एक जर्मनी बेस्ड बैंक है. तो ये सब चीजें जो है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं गूगल का हेडक्वार्टर्स एज यू नो कि वो कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट्स में. एंड उसका सीईओ हम सभी को पता है बाय नाउ, इट इज आवर वेरी ओन इंडियन सुंदर पिचाई, राइट. नाउ मूविंग ऑन, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ IFSCA? इसका जो आंसर है दैट इज इंजेटी श्रीनिवास. नाउ दिस particular fact is very important because ये जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, मतलब कि IFS का जो फुल फॉर्म है. तो ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि IFSCA का फुल फॉर्म क्या है? इट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी. तो इसमें जो इंजेटी श्रीनिवास नए चेयरमैन हुए हैं, he has been a 1983 बैच IAS ऑफिसर. लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे से जो टेक अवे है, जो पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए, दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ IFSCA, दैट इज इन गांधीनगर गुजरात, ठीक है. IFSCA जो होता है ये एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है. दिस is an unified authority which regulates the financial services, as you can see here, in international financial services centers. मतलब क्या है? मतलब कि जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स हैं उन सबको मॉडरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं. तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस से जुड़े हुए जो भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो IFSCA ही तय करता है एंड इट कम्स अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. ओके, नाउ moving on to a sports related question, Formula 21 basically ये जो sports है, okay, who won the Austrian Grand Prix 2020? वाल्टेरी बोटास, ठीक है. ये जो फॉर्मूला 21 का ये फर्स्ट सीजन का ये मैच था, फर्स्ट मैच था इस सीजन का. तो इसमें वाल्टेरी बोटास हु इज अ मर्सिडीज ड्राइवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन सी कंपनी का गाड़ी का वो ड्राइवर है, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज अ कार रेस. सो इसीलिए कौन कौन कंपनी से यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, स्पेशली विनर कौन कौन से कंपनी है, एंड ड्राइवर जो मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन है वहां पे उनका नाम क्या है, दैट मेक्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हियर. तो यहाँ पे वाल्टेरी बोटास जो है ही इज अ मर्सिडीज ड्राइवर, ही वोन द फर्स्ट रेस ऑफ द Formula 2020 season, while Ferrari's Charles Leclerc finished as the second.
ओके एंड ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? रेड बुल रिंग पे हुआ था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि ये फर्स्ट रेस था फॉर्मूला 2020 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पे आई कैन से टू यू इज दैट दिस इवेंट वाज कंप्लीटली ऑडियंसलेस। मतलब कि यहाँ पे कोई भी किसी को भी ऑडियंस नहीं घुसने दिया गया। द स्टेडियम वाज एम्प्टी because of the COVID situation, you know, still taking all the precautions, this race was held at the Red Bull Ring. Okay, next another banking and economy related fact, which company ties up with MasterCard to facilitate cross border remittances? अब ये remittances एक important बात है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। SBM India ties up with MasterCard to facilitate cross border remittances. SBM मतलब होता है State Bank of Mauritius. Okay, as you can see here, State Bank of Mauritius है। तो facilitate cross border remittances, that means कि यहाँ पे रेमिटेंस का मतलब है बेसिकली, अगर हम बहुत सिंपली बोले तो एक बैंक से और एक बैंक में जो मनी का ट्रांसफर किया जाता है, एक बैंक से डेबिट करके दूसरे बैंक में डेबिट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द बैंक, मतलब ये बैंक के पर्पस के लिए होता है रेमिटेंसेस, ठीक है। अगर कोई बैंक में जो पूरा उनका कलेक्शन है उसमें थोड़ा घट गया है मनी, तो उनको अलग बैंक से अगर लेना चाहे वो, एंड दैट इज फ्रॉम अनदर कंट्री, तो इस वजह से ये जो टाई अप हुआ है, दिस इज बिटवीन स्पेशली बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस एंड मास्टरकार्ड, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि SBM बैंक ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट बैंक टू रिसीव यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम RBI टू सेट अप एंड ऑपरेट एज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इंडिया में कौन सा ऐसा बैंक था कि जो या फिर है जो RBI से जिसको लाइसेंस मिला था टू सेट अप एंड ऑपरेट एज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, राइट। नाउ SBM का जैसे मैंने फुल फॉर्म बोला है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस है। इसका ऑब्वियसली इसका हेडक्वार्टर मॉरिशस में है एंड इसका CEO है पार्वतानेनी वेंकटेश्वरा राव, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला हेडक्वार्टर्स है मॉरिशस में, पर्टिकुलरली जो नाम है पोर्ट लुई नाम है जगह का, ठीक है। तो इसका काम क्या है? फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस। इसलिए याद रखिएगा SBM एंड मास्टर क्लास, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एंड इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनदर बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस लोन इन सेकेंड्स फॉर रिटेल कस्टमर्स, ठीक है। द आंसर इज येस बैंक, ठीक है। अब देखते हैं कि इससे क्या होता है, क्या सुविधा मिलेगा हम लोगों को। येस बैंक हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल सोल्यूशन दैट इज लोन इन सेकेंड्स फॉर इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स। The account holders identified by the bank can avail this quick loan disbursal facility without any document. You can see it here. आपको पता है कि when in the usual process we go to the bank for a loan and there is this a long procedure that we have to follow in order to take any commercial, any retail loan for that matter. नाउ अब ये जो लोन इन सेकेंड्स है, इससे क्या होगा कि इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ लोन होगा, लेकिन क्या सिर्फ रिटेल लोन ही इस कैटेगरी के अंदर में आएगा, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो बी, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट एज ऑफ दैट इंस्टेंट नहीं लगेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं येस बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र। CEO and MD is Prashant Kumar, while the tagline, which is very important, it is experience our expertise. This is the tagline of Yes Bank. And another important factor, आप जानते ही होंगे कि Yes Bank को कुछ ही दिन पहले SBI ने acquire कर लिया था because Yes Bank was going through financial crisis, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which state launches Mahajobs portal for the unemployed youths? Answer is Maharashtra.
ठीक है, अब देखते हैं फैक्ट्स क्या क्या है। In a bid to provide job opportunity to job seekers, Maharashtra government has launched a web portal, mahajobs.maharashtra.gov.in, developed by Maharashtra Industrial Development Corporation MIDC। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट हियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ऑब्वियसली ये है कि कौन सा स्टेट महाजॉब्स पोर्टल लॉन्च किया है। नंबर 2 जो क्वेश्चन बन सकता है, महाजॉब पोर्टल का एम क्या है। एम है ऑब्वियसली, जैसे कि नाम खुद ही स्टेट कर रहा है, कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, जो अभी कोविड सिचुएशन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है, इसीलिए इसी को फैसिलिटेट करने के लिए ये जो जॉब पोर्टल है ये स्पेशली खुला गया है। एंड ये जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किसने इसको डेवलप किया था, दैट इज महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, एंड एज यू ऑल माइट हैव नोन दिस फैक्ट ऑलरेडी, दैट चीफ मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र के अभी वो है उद्धव ठाकरे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अ बुक रिलेटेड क्वेश्चन, हु रोट गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, ठीक है, गेटिंग कम्पिटिटिव, द आंसर इज RC भार्गवा। ओके, द टॉप फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस क्या है, ये द चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी RC भार्गवा हैज ऑथर्ड दिस बुक। ये जो RC भार्गवा जो ऑथर है यहाँ इस बुक के, वो कौन थे, वो है वो है द चेयरमैन ऑफ मारुति सुजुकी, ठीक है, ये कंपनी इनसे जो रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ही हैज ऑथर्ड दिस बुक गेटिंग कम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस एज अ पॉलिसी मेकर एंड लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट। मतलब वो खुद एक पॉलिसी मेकर थे मारुति सुजुकी कंपनी जो था, एंड वहां पे वो क्या उन्होंने फेस किया था, उनके खुद का क्या एक्सपीरियंस था, उनसे इंस्पायर होके उन्होंने ये बुक लिखा है, ठीक है। And the MD and CEO of Maruti Suzuki is Kenichi Ayukawa. Obviously, as I said, we are talking about a person who has authored this book, ठीक है। फिर उनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, दैट इज ही वर्क्स इन मारुति सुजुकी। अब मारुति सुजुकी का MD CEO कौन है, केनिची आयुकावा, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड द बुक पब्लिशर इज हार्पर कॉलिंस इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं अनदर कैंपेन इन द वोक ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, ठीक है, विच स्टेट लॉन्चेस इंतजार आपका कैंपेन, द आंसर इज मध्य प्रदेश, ठीक है। इंतजार आपका, व्हाट इज द इंतजार अबाउट, लेट अस सी। Through this, the board has been inviting tourists by describing about each tourist destination in an attractive way on social media. So ये जो campaign है, this is basically to boost up the tourism sector of India. आप जानते हैं कि इकोनॉमी जो है किसी भी कंट्री का, उसमें एक बहुत बड़ा इनपुट होता है जो टूरिज्म जो पार्ट होता है, ठीक है। तो टूरिज्म से एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आता है जो एक इंडियन इकोनॉमी में, कोई भी कंट्री की इकोनॉमी में। एंड ड्यू टू कोविड ऑब्वियसली लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया है, घूमने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो टूरिज्म ऑब्वियसली हैज हिट अ हार्ड रॉक बॉटम। तो अब ये क्या हुआ है कि इसी के लिए इंतजार आपका कैंपेन स्पेसिफिकली लॉन्च किया है मध्य प्रदेश में, ताकि टूरिस्ट लोगों को फिर से अट्रैक्ट किया जाए। एंड दिस इज अ कैंपेन मेनली फैसिलिटेटेड थ्रू द सोशल मीडिया। मार्केटिंग किया जा रहा है इस कैंपेन का थ्रू सोशल मीडिया इन एन अट्रैक्टिव वे बाय लॉन्चिंग एडवर्टाइजमेंट्स, स्लोगन्स एक्सेट्रा। ओके, एंड लेट्स सी CM ऑफ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, शिवराज सिंह चौहान है CM ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, Indian Coast Guard signs a memorandum of understanding with which country's Coast Guard in order to boost maritime relations, ठीक है। इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड आंसर है, जिसको बोला जाता है बदान कियामनन लॉट रिपब्लिक इंडोनेशिया। ये इंडोनेशियन टर्म में इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड को बोला जाता है।
टर्म क्या था, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इस एम को सामने रखते हुए, मतलब कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को सामने रखते हुए ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये जो ट्रीटी है, ये साइन किया गया है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड्स। ठीक है, तो आईसीजी मतलब कि इंडियन कोस्ट गार्ड्स, मैं लिख देती हूं यहाँ पे आईसीजी, दैट मीन्स इंडियन कोस्ट गार्ड्स। डायरेक्टर जनरल Krishnaswamy Natarajan and head of Indonesian Coast Guard Vice Admiral An Kurnia in the presence of Ambassador of India to Indonesia जिनका नाम है प्रदीप कुमार रावत and Mohammad Rizki Safari who is the Minister Counselor of Indonesian Embassy in New Delhi, India, and some other officials from Ministry of Defense and Ministry of External Affairs। तो ये सभी मौजूद थे जब वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया जा रहा था वर्चुअली। ठीक है, अबाउट इंडोनेशिया जानते हैं, इसका कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया एंड प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Who becomes India's 66th chess grandmaster? जी आकाश नाम है उनका, वो बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, is actually from Chennai, Tamil Nadu. The 23-year-old from Tamil Nadu got his grandmaster title at the second council meet of International Chess Federation of the year 2020 held recently। and आकाश के कोच कौन थे, ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वो यहाँ पे उनका कोच कौन था। ठीक है, अगर बहुत टफ या फिर मैं बोलूँ बहुत रेयर क्वेश्चन आ जाए तो इन दैट केस के विश्वेश्वरन यहाँ पे जो नाम है आकाश के जो कोच थे उनका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, the new building of IARI Jharkhand is named after whom? Answer is Dr. Shyama Prasad Mukherjee। देखते हैं इससे जुड़े हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। The new administrative and academic building of the Indian Agriculture Research Institute, that is IARI। ऑब्वियसली मैं इसको अंडरलाइन करूंगी, आप जानते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इसका फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IARI? ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एट गोरिया कर्मा हजारीबाग झारखंड इज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, on the event of his birth anniversary। So many facts in this single sentence and you all have to memorize it कि इसका नाम क्या है, कहाँ पर है, एंड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन से किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ही इज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। ओके, एंड अब जान लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के बारे में कि वहां का यूनियन मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। अबाउट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR पर्टिकुलरली, इसके बारे में जानना क्या है कि इनका प्रेसिडेंट कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर ही है इनका प्रेसिडेंट। ये एक इजी फैक्ट है कि हमारा जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वो ही है ICAR के प्रेसिडेंट। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। एंड इसका डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा एंड इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। नाउ आगे बढ़ते हुए, there was a MOU, that is Memorandum of Understanding, signed between National Medicinal Plants Board and whom? The answer is ICAR, जो हम अभी बात कर रहे थे जिसके बारे में, and the National Bureau of Plant Genetic Resources। ठीक है, अब देख लेते हैं। A memorandum of understanding was signed between the Indian Medicinal Plants Board NMPB under the Ministry of Ayush and ICAR National Bureau of Plant Genetic Resources under the Department of Agricultural Research and Education to conserve medicinal and aromatic plants genetic resources। ठीक है, ये फैक्ट्स यहाँ पे एक लाइन में जो फैक्ट्स है ये आपको याद रखना पड़ेगा।
ICAR का हेडक्वार्टर्स, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था कि हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है एंड प्रेसिडेंट है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है, वो हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये सब स्टैटिक में आता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं कि असम गवर्नमेंट has decided to upgrade with sanctuary to national park amid coal mining growth. नाम है देहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, ठीक है। देख लेते हैं ये क्या होता है। पोस्ट अपग्रेडेशन देहिंग पाटकाई विल बी द 6th नेशनल पार्क इन असम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6th नेशनल पार्क होने वाला है आफ्टर द अपग्रेडेशन प्रोसेस। असम के बारे में जानना है हम लोगों को। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कैपिटल है दिसपुर एंड गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है। फंड अप्रूवल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन एंड इन विच स्टेट्स। ये है हिमाचल प्रदेश एंड इन गोवा। क्या है जल जीवन मिशन? JJM जिसको बोला जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति जिसका नाम है गजेंद्र सिंह। जल शक्ति गजेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर। यूनियन गवर्नमेंट हैज allocated rupees 326.20 crore for the effective implementation of Jal Jeevan Mission in Himachal Pradesh and Goa for financial year 2020-21। इसका एम क्या है कि सब रूरल हाउसहोल्ड में प्रॉपरली पानी जाए, प्रॉपरली पानी का बंदोबस्त हो। यही जल जीवन मिशन का, जैसे नाम बोल रहा है जल जीवन मिशन, इसका एम भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये इंडिया का रैंक के बारे में है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन JLL's 11th edition of ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020? द आंसर इज 34th पोजीशन। देख लेते हैं कि क्या है, किसने टॉप किया है लिस्ट को, या फिर ये JLL लिस्ट क्या होता है, ठीक है। According to the 11th edition of Global Real Estate Transparency Index 2020, which covers 99 countries, यहाँ पे important है, 99 countries and territories and 163 cities, released by Jones Lang LaSalle। ये जो है Jones Lang LaSalle JLL, ये नाम याद रखना है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता ही है कि इसका फुल फॉर्म क्या है JLL का। So India has approved by 1 place to 34th. That is a good news, obviously, with a total score of 2.69 under semi-transparent zone, while United Kingdom UK tops the list. अब JLL के बारे में जान लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर है शिकागो में, यूनाइटेड स्टेट्स में। प्रेसिडेंट है क्रिश्चियन अल्ब्रिच एंड CEO एंड कंट्री हेड ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली इंडिया में है रमेश नायर। ये याद रखना है कि JLL का इंडिया में चेयरमैन या फिर हेड जो है वो कौन है, दैट इज रमेश नायर। नेक्स्ट देखते हैं अनदर इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन। Who has launched Liberty Assure and Industry First Service? Liberty General Insurance का नाम है। It is an auto insurance service for customers to avail this service are not required to pay compulsory deductible cost for every claim. And about Liberty General Insurance, headquarter है मुंबई and CEO है रूपम आस्थना। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, CEO कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनदर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड, UP CM योगी आदित्यनाथ inaugurates which campaign to plant 25 crore saplings across UP मिशन वृक्षारोपण 2020, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसका एम क्या है। दिस विल बी इन कुकरेल फॉरेस्ट लखनऊ ऑन अकाउंट ऑफ गुरु पूर्णिमा, अंडर विच
25 crore saplings of medicinal, herbal, environmental, fruit producing, shady fodder plants, मतलब कि हर तरीके के जो यूजफुल प्लांट्स होते हैं उनको लगाया जाएगा. इनके 2001 स्पीशीज को इस्तेमाल किया जाएगा for the saplings planted across the whole state of UP. उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है that is आनंदीबेन पटेल and the capital is लखनऊ. Okay. Next देखते हैं which Indian boxer secures the top spot in AIBA World Men's Ranking. It's a very important question from sports. अमित पंगल इनका नेम है. इंडियन द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है AIBA has released world rankings for the women's and the men's section. तो यहाँ पे है सिल्वर मेडलिस्ट अमित पंगल मेंस सेक्शन में फर्स्ट हुए हैं, एंड फ्रॉम द विमेन सेक्शन मंजू रानी हैड गॉट द सेकेंड प्लेस इन विमेन रैंकिंग्स. अच्छा, अब AIBA का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इन लोज़ैन, स्विट्जरलैंड, एंड इनका इंटरिम प्रेसिडेंट अभी है जो कि डॉक्टर मोहम्मद मोहतसिन है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हु इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडिया बेस्ड CEO ऑफ UKIBC. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है. ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है. यहाँ पे आंसर है जयंत कृष्णा. UK इंडिया बिजनेस काउंसिल, दैट इज यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल, UKIBC फुल फॉर्म. इसका याद रखना पड़ेगा. अनाउंस दैट जयंत कृष्णा हैज एक्सेप्टेड द इन्विटेशन टू UKIBC टू बिकम इट्स CEO and the first India based CEO of UKIBC. This is very important. He will be succeeding the current CEO Richard Heald. यहाँ पे obviously वो किसको succeed कर रहे हैं, बहुत important fact होता है. रिचर्ड हील्ड जो है उन्होंने चार्ज लिया है अभी. फ्रॉम द 1st September he will be succeeding Lord Davis of Aberystwyth, the current chair. ठीक है. एंड UKIBC का चेयरमैन कौन है? अभी जो है लॉर्ड डेविस है, लेकिन आफ्टर सितंबर वो कौन हो जाएंगे? रिचर्ड हील. एंड रिचर्ड हील को कौन रिप्लेस कर रहे हैं एज द CEO? वो है जयंत कृष्ण. ठीक है. दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड. नाउ another as we are entering into the concluding part of today's discussion, हम लोग देख लेते हैं कि important and very practical thing कि Ola enters into a strategic partnership with which company to enhance its digital payment system? The answer is PhonePe. यहाँ पे क्या हुआ है कि इससे क्या होगा कि इनका जो मतलब जो कस्टमर्स हैं, जो ओला एंड फोन पे बोथ का कस्टमर्स हैं, उन लोगों का पेमेंट सिस्टम में बहुत इजी हो जाएगा. द डिजिटल पेमेंट सिस्टम इज वेरी कन्वीनियंट नाउअडेज एज यू माइट नो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉन्च हो रहा है इनके साइड से. सो ओला हैज लॉन्च्ड Ride Safe India to encourage customers to choose digital channels and amid COVID-19. तो COVID-19 के वजह से आप लोग देख चुके होंगे कि ई-कॉमर्स हो या कोई भी हो, डिजिटल कैश पेमेंट सिस्टम, मतलब नॉट द फिजिकल कैश पेमेंट, लेकिन डिजिटली जो कैश ट्रांसफरिंग सिस्टम है वो उस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट. तो इसीलिए ये कैंपेन है. ओला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका. को फाउंडर एंड CEO भवेश अग्रवाल. ओके. फोन पे का हेडक्वार्टर्स है अगेन बेंगलुरु, कर्नाटका, एंड CEO है समीर निगम. Now with that, I'm ending today's session here. Thank you for your patience and joining me in this class. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Till then, goodbye. Do like, share and subscribe our videos.